Hey everyone. Actually, we had a call related to this portfolio in September 2025, like exactly 11 months back. So the situation was like the market was recovered from some hiccups in March 2025 मार्केट ने थोड़ा बॉटम बनाया था एंड उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई ड्यू टू वेरियस रीजन जैसे रिजल्ट्स अच्छे थे यार समथिंग एंड immediately after that there was the announcement of GST cut in September 2025. Okay, so वही अभी हम एजेंडा वही है अपने ग्रुप ये कॉल का कि like we'll be covering one of my family portfolio, how it did in last 9 years, 9.5 years approx. And what I did, what are my plans with the portfolio? What should we expect from our own investment portfolio? And again, like it's not to demonstrate anything, okay? But I want to just we all know the background of us is to we try to inspire or encourage new investors or maybe handholding during the bad phases of the market. So like we have our groups, multiple groups where our friends are part of that groups where we discuss more or less about fundamentals. Okay, so that is the motive to inspire the friends. Again, don't compare it with your earnings, your savings. Okay, so every unique guy have their own saving ratio, like monthly income आता है, monthly expenses to saving ratio अलग अलग होते हैं. फैमिली मैटर भी करता है कि लाइक बड़ी फैमिली हो तो एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, सेविंग कम होती है, होम लोन है तो ईएमआई की वजह से भी सेविंग थोड़ी कम होती है. सो डोंट कंपेयर वन टू वन. ओके, एंड या सो we'll try to discuss like how to achieve or how to plan our future. Okay, and again we will again discuss about like how to manage our portfolio, how to restructure when the portfolio is up, how to ride the multi baggers if we are holding any. Okay, so various topics will be touch basing, and we will also discuss about uh, what should be the simple plan for investments. Okay, so let's move ahead. Yeah, so Indian stock market may like my background is like I was I was engineering pass out from Pune, MIT Pune College in 2006. So fortunately I got during my first job I got my one of the good friend who forced me to open the demat account. There was one agent friend who opened my mutual funds. There was also one agent friend in 2007 he opened my LIC. Okay, so that's how my journey started in 2006. But again it was quite unguided journey. Data available नहीं था. Stock market was treated as you can say operator driven market. So the people who were investing or who were there 20 25 years back, they know like how the market was running. Okay, so it was like good, but again the data was not accurate you can say, or not live you can say. So अभी जैसे screener या बहुत सारे tools आ गए हैं, but उस time पे कोई tools या ready-made data available नहीं था. So we need to go to BSE websites, check which results are out, and need to check the BSE website itself, BSE or NSE website. Yeah, so again, I was I did many I did some survey. I spoke with my seniors who were like 5 10 years elder than me about stock market investment. So thing was कि कितना investment करना है वो पता ही नहीं था किसी को, right? There were no real examples, but still my journey continued with the via mutual funds and a little bit investment. Uh, 10 तो वो टाइम से ऐसा था कि ऐसा एक भी साल नहीं था या फिर ऐसे एक भी ऐसे एक दो साल नहीं थे कि जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल रहता है. तो हर साल ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सो जब से जो पोर्टफोलियो के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो पोर्टफोलियो लाइक इट इज माय वाइफ्स पोर्टफोलियो. ओके, सो वी स्टार्टेड दैट पोर्टफोलियो इन जनवरी 2017. Again, like we had some home loans till 2016. So there was a mistake I did of buying the second home in 2012. तो हमने एक घर 2016 में बेच दिया, तो उसका ईएमआई नहीं जाता था, तो ज्यादा सेविंग हमारी हो सकती थी. That's why we opened the Zerodha account and started. So I was investing since long, but for my wife, it was a fresh investments. In 2014, I stopped my all mutual funds. I analyzed 8 years bit data about the mutual funds, how they are performing, how can I perform. So I thought I can do a little bit better than mutual funds. So I stopped my mutual funds and I converted those mutual funds or LIC. I also sold LIC. Luckily, I was very fortunate that my LIC uh, entire money, whatever invested in LIC, I was able to withdraw, because you know that LIC funds are not easily withdrawable. So until and unless the LIC is mature, you can't withdraw. Okay. So in 2015, 16, I met one of the real face who was an investor. So he was my guru, Mr. SB Kulkarni sir. So it was like a अमे तू आ रहा है तू तेरे friends को लेके आ. So that's how we started with him. So he was investing. So when I met him, he was like 80 years old, 80 years old, 80 years old, and he was investing since 1970s. So money order से वगैरह उन्होंने वो जमाने में investment चालू किया था. He was a civil professor of engineering college, CVP Engineering College of Pune, and he was retired in 1990. So I think he took a little bit early retirement, and he was a full time investor till then. So he was very interested to share about the stock market with all the individuals who are interested to learn. Okay, so वैसे ही हम गए. तो वो 2 साल वी स्टार्टेड सम वे सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन कम टुगेदर एंड गो टू सर. सो हमारे कोर्सेज का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था. इट वाज लाइक कि 2 घंटा फ्री है वीकेंड्स को आ जाओ, एंड हमारे डिस्कशन से चलते थे. एक सिलेबस उन्होंने एक बेसिक सिलेबस निकाला था.
उसको भी लेके हमने काफी चर्चाएं की, काफी स्टॉक्स के डिस्कशन में. सो हाउ दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि वी कैन बी 100% इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. सो देयर इज नो नीड टू फियर बिकॉज if the economy is growing and we are investing in good stocks, then I think there is no need to worry about what our stocks will do, or how our portfolio will grow. So obviously, with economy, if economy is growing, our good selection will also grow. Okay, so obviously the stock market will also grow. Okay, so since I started my wife's portfolio, there was like a Brexit pressure था. 2015-16 से ब्रेक्जिट का इशू चल रहे थे. जस्ट उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, देन बजट थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स की रिस्ट्रक्चरिंग हुई ये बजट में 2018 के. देन जीएसटी उसी साल अप्लाई हुआ था. Then due to GST demonetization, there was very proxy issues in our Indian unorganized industry. But still, we slowly came back. Like the economy reverted back. Then in like economy recover होती ही नहीं, तो next issue आ गया था NBFC crisis in second last quarter of 2019. तो जहाँ पे आईएल आईएलएफएस का बहुत बड़ा लाइक 90,000 करोड़ का जो फाइनेंसिंग गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग कंपनी था, वो बैंक्रप्सी पे आ गया था एक्चुअली. सो उस पे काफी चेन ऑफ इंटरडिपेंडेंसी थी विद द बैंक्स एंड अदर एनबीएफसीज. Then there was COVID, we all know. Then there was after COVID there was a economic slowdown. Then Ukraine war. Then markets bubble of bubble. Okay, so at this point of time, we spoke about this in past in our groups and in our monthly calls. That the stock market was very overvalued. Same with US का Nasdaq भी काफी overvalued हो गया था. Then there was issue of Trump tariff. Then India Pak strike 2025 अप्रैल में भी इशू हुआ था. देन 2025 में इशू हुआ था. देन अगेन ट्रम्प ने टेरिफ बढ़ा दिया था. And recently this year there was Iran Israel US का war, and now AI war is going on since Feb. So you know that OpenAI have introduced the players who are using OpenAI, Anthropic and ChatGPT and other players have introduced the AI various modules, and it is pressurizing the entire service industry, entire IT service industry. That's why our Indian IT stocks are also shaken. Okay, so यहाँ पे हमने एक ही देखा है कि हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं. Okay, so when we select the stock, we need to check whatever problem comes to our stock or our business which we are investing. We should be sure that in any given condition our invested stock should grow. Okay, irrespective of what's going in geopolitical issue, what's going in Indian political issues or government issues. Okay, because we think that the business which is doing good, जो बिजनेसमैन होता है वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं होता है, वो जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंट नहीं होता है. ओके, सो हर बार जरूरी नहीं है कि उनका स्टॉक्स का फंडामेंटल्स या रेवेन्यू ग्रोथ होता रहेगा. ओके, सो देयर आर सिचुएशंस वेयर there is really a slowdown in terms of consumption and demand is low. Sometimes the products are deferred. I mean to say, जैसे लास्ट साल ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में ठीक नहीं थी, यूरोप में अभी भी बुरी चल रही है. तो क्या होता है कि अगर ऑर्डर कुछ इंडिया में मिलते हैं बिजनेसेस के, तो ऑर्डर भी डिफर होते हैं या फिर डिलेड होते हैं. तो ऑर्डर डिले होने के कारण क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है लिस्टेड, वो अपने फोरकास्ट भी बुरे कम कर देते हैं, रेवेन्यू पे भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट. तो रियल सिचुएशन में थोड़ा 19-20 होता है, बट 5 to 10 years के पर्सपेक्टिव से हमारे बिजनेस जो है वो अच्छे रहने चाहिए. तो वैसा ही सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट्स का होता है. ओके, सो दैट इज द बेसिक फिलोसॉफी और बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिंग. कि अच्छी कंपनी रहे जो ग्रो हो रही है, निश प्रोडक्ट चाहिए, डेट कम चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, स्केल होना चाहिए. दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया. ओके, एंड मैनेजमेंट ऑब्वियसली, तो 90% जो चीज डिपेंड होती है मैनेजमेंट पे, कंपनी के ग्रोथ की. Okay, so these were the situation. Okay, now we can see here how the Nifty behaved in this 10 years. So you can see during all this crisis, you can see the demonetization, then post demonetization ka rally, then GST, mutual fund restructuring reforms, then COVID, then whatever demand was there that was deferred, and maybe vaccination की positive news आई इसलिए market ने rally किया. Then Ukraine war चला एक साल. देन इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हुई 2023 में, आफ्टर यूक्रेन वॉर स्टेबलाइज. द क्रूड का प्राइस जो बढ़ा हुआ था वो भी नीचे आया था इस पीरियड में. उसके बाद जैसे बबल ऑफ बबल जो बोल रहे हैं हम, तो स्टॉक मार्केट और बहुत सारी चीजें बिजनेसेस ओवरवैल्यूड हो गए थे इस पीरियड में, एंड फॉलोड बाय द रिजल्ट्स वर बैड. सो हुआ ऐसे कि जैसे ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी बुरी हुई, यूरोप की सिचुएशन थोड़ी बुरी चल रही थी. चाइना ने बहुत सारा जो माल है वो बेचना पड़ गया था, बेचना शुरू कर दिया था. तो चाइना जब बेचता है तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट होता है. तो सो चाइना डोंट केयर अबाउट द थिंग्स. सो यहाँ पे भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ था. एंड देन देर वॉज पॉजिटिवनेस ऑफ ड्यू टू ट्रम्प again in market, and then again he applied 50% tariff. Then recently crude ईरान का जो वॉर हुआ चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन आया, और उसी दौरान एआई का भी स्लो डाउन आया. सो निफ्टी ने इसी पीरियड में नीचे like it was a downfall of the Nifty, and this March 2025 2026, and now slowly the market is recovering. The results are coming good, the results are decent. So Nifty is little bit in recovery mode right now. Okay, फिर भी जो पीक बनाया था वहां से निफ्टी अभी भी 7-8% डाउन है. मिड कैप नया हाई बना रहा है, एंड स्मॉल कैप इज लाइक 5% 4% डाउन फ्रॉम इट्स प्रीवियस पीक. सो इसी दौरान, सो आई ट्राई टू
figure out the graph of the portfolio. So this is just one account, one demat account. So there are two accounts which are part of this portfolio. So you can see here कि ये COVID के time पे we started invested in my wife's portfolio during 2017 January, and before COVID the investment the portfolio value was 16 lakh, and जब COVID का crisis आया तो वो portfolio 7-8 लाख पे पहुंचा था. But again the SIP continued. This was the period where my wife was not working for 5 to 6 months. So it was like she got an offer, but offer got deferred. Like they asked to join after few months, and it went on and on. So it was like a proper rest of like 6 months. So SIP यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है. So जो dark blue है वो SIP है, and जो faint blue color के dots दिख रहे हैं that is the withdrawal. Okay, so you can see the SIP is continued over here all the over this period. And what happened like June 2023 में I resigned from my corporate job. So I was working since last 18 years. So I was also planning for my what you can say the goal since last 12 years, actually 12 13 years, since 14 15. So but it happened a little bit early, so I took a call of resigning because वो क्या हो रहा था कि अपना डिजिग्नेशन भी बढ़ गया था, टाइम कम पड़ रहा था मुझे इन्वेस्टमेंट का स्टडी करने के लिए, एंड आई वाज लिटिल बिट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट. जॉब वाज नाइस, एंटीवायरस डोमेन, देयर वाज लाइक हार्डकोर डेवलपमेंट भी करता था. The job was at peak, but again like considering all aspects what I did, I thought to just stop the corporate world and focus on my full-time investments. Okay, and this was period where we did some major withdrawals. Okay, so थोड़ा partially दूसरे अकाउंट में गया, partially हमने घर लिया तो उसके डाउन पेमेंट को थोड़ा पैसा गया यहाँ पे. And again the SIP continued till now. Okay, so are we good? Am I audible till now? Any queries or anything? Any doubts All till now? Yes. no, man. All good. All good. Okay. So yeah, so this is again this is one account. So other account is like some money is parked in ICICI Direct. So वो अभी मर्ज नहीं किया है, यानी ये सिंगल ग्राफ दिखा पाया, वहाँ उसका ग्राफ like I don't find ICICI Direct more interactive. Yeah, so now how was the performance since last few years? Okay, so this is kind of NAV, you can say, of the portfolio, and this dark blue is the portfolio, our portfolio, and I think the purple one is Nifty. This brown one is Nifty 500 try, I guess. Okay, so you can see here the valuation of the NAV is growing gradually. Obviously, 90% of stocks are in small cap. That's why the volatility is huge. Okay, you can see here, जब मार्केट ऊपर जाता है तो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करता है, नीचे गया तो ड्रॉडाउन भी उतना ज्यादा रहता है. ओके, सो दिस वाज 2025 March period where the Nifty made the low of 22,000, and this was March 2026 where Nifty made approx 23 के आसपास गया था Nifty, I guess, and then after that the recovery again started. Okay. Okay, now 11 months back हमने जब डिस्कस किया था तो like you can see here data we started in Jan 17, the Nifty was at 8,300. 11 month back on 5th of September 2025 the Nifty was at 24,700. तो आज भी Nifty 24,700 600 के ही लेवल पे है. Nifty ऊपर गया नहीं है, एक साल हो गया, अभी 11 महीने हो गए लगभग. अब Jan to September 2025 it was like 8.5 years. Okay, so मैंने क्या किया कि like again like ये एक्सेल मेरा कभी मैंने बनाया नहीं था जिंदगी में. ये एक्सेल बनाने के 2-3 महीने पहले किसी ने पूछा कि भैया तुम्हारा CAGR कितना है. फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद का CAGR एक्सेल कैलकुलेट नहीं करता. आई जस्ट मेक श्योर आई एम ग्रोइंग विद 12% और बेटर देन निफ्टी. क्योंकि क्या होता है कि like every time we need to update the sheets and that all things, and and there are like 5-6 accounts, demat accounts, my family is holding, so it's very tedious to merge it every time because कभी कभी frequency trading भी कभी कभी investments होता है या फिर trading. So trading भी होता है, trading I mean to say मैं cash में थोड़ा trading करता हूँ. So as I am full time, some portion I have extracted from my investment portfolio for short term trading, but again it's not a active trading. Okay, so how I realized that I should do trading. So in 2018 I started my trading short term trading journey which was decent. Okay, in trading as well बहुत सारे stocks जो long term रखने चाहिए थे वो short term trading के लिए मैंने बेच दिए and they become multi bagger. So again that was also a learning for me. So इसीलिए फिर trading का अकाउंट थोड़ा सेपरेट रखता हूँ, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट थोड़ा सेपरेट रखता हूँ. I changed my rules of trading. कभी कभी होता है कि ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लेता हूँ एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है तो उसको मैं एज अ इन्वेस्टमेंट मार्क कर देता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म. सो देयर इज नो नीड टू सेल योर ट्रेडिंग स्टॉक. मेरा गुजारा कैसे होता है तो फ्रॉम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आई जस्ट प्लग the monthly expenses and EMIs whatever required for me. So I am not debt free. I was not debt free. I am in debt since 2008 since 2010, since my first home. Okay, so वो आदत पड़ गई है. So like there are like a couple of loans, there are monthly expenses I need to take care. My wife's salary part goes to SIP, part goes to the हमारा home loan. Okay, so yeah, so 11 महीने पहले सितंबर 2025 में ये पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वो 1.63 करोड़ था. जो पीक हमने देखा यहाँ पे जो निफ्टी ने पीक बनाया था 24 सितंबर 2024 में, वो पीक में ये पोर्टफोलियो ने 1 तो मैं ये डेप कितना परसेंटेज है तुम्हारा? डेप्थ
If you लाइक want to share, नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू शेयर, बट मैं ये पोर्टफोलियो के स्पेसिफिक मैंने कुछ किए हैं कांड, वो मैं डिस्कस करूंगा, percentage. ठीक है? Yeah, we will go to it again. Like it's not about the percentage actually. It's about के after being full time investor, okay, what I'm taking care के भाई 7% या 8% मैं एफडी में अगर डालता हूँ, ठीक है, मेरा जस्ट अपन उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम अ फुल टाइम इन्वेस्टर, ओके। अभी वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा अपने टॉपिक से, हम वो लास्ट में क्वेरी लेंगे। जस्ट नीलेश मुझे एक बार रिमाइंड दे देना ये होने के बाद, ठीक है? ओके, सो जब सितंबर 24 में पोर्टफोलियो ने भी पिक किया था, 2.7 सीआर का हुआ था एग्जैक्टली उसके एक साल बाद। अभी मैंने ये एक्सेल में ये डेटा क्यों डाला है? दिस इज जस्ट टू शो इन्वेस्टर्स कि जब मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो भी गिरेगा, ओके। सो 24 यानी 2017 से सितंबर 24 तक पोर्टफोलियो का कैगर, आई वाज आल्सो सरप्राइज टू सी द कैगर, इट वाज 34.25%। इट वाज फिनोमिनली वेल, यानी फिनोमिनली वेल था, यानी आई वाज शॉक्ड बाय सच परफॉर्मेंस, बिकॉज दूर दूर तक यू कैन सी हियर निफ्टी का कैगर उसी पीरियड में 16% ही था। दिस वाज पीक ऑफ मार्केट ना, जब मार्केट पीक पे जाता है ना तो आपका कैगर ना बहुत स्ट्रेच करता है हायर साइड में। तो सिमिलरली निफ्टी का भी स्ट्रेच हुआ था उस पीरियड में। निफ्टी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता था, बट निफ्टी भी स्ट्रेच हुआ था। सो लाइक एज 24 के बाद 25 में एक साल पास ऑन हुआ, तो जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ा, मेरा 7 साल का जो रिटर्न, 7 साल जो थे ड्यूरेशन, वो 8 साल में कन्वर्ट हुए। तो जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है एंड मार्केट भी गिरा हुआ है तो आपका एक्सआरआर घट जाता है। सिमिलरली निफ्टी का भी कैगर घट गया उस पीरियड में, ओके। नाउ ये है 11 महीने पहले का डेटा। सो हियर व्हाट आई हैव ट्राइड टू शो कि दीज आर द डेट्स वेयर मार्केट इज डिस्काउंटिंग और मार्केट इज फॉलिंग, और ये 1.7 करोड़ का पोर्टफोलियो एक 31 तक गया था। मार्च वाज द बॉटम। आई हैव नॉट कैप्चर्ड, बट आई सॉ समथिंग अराउंड 1.29 समथिंग का मैंने एक फिगर देखी थी ये अकाउंट में। So later the portfolio recovered, right? So after 6, 7, 8 months the portfolio recovered, and still in this phase I have beaten the Nifty. So अगर मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता था, निफ्टी के यूनिट्स लेता था, तो मेरा XIRR 13.5 रहता था, ओके। हाउ मच आई बीट निफ्टी इन लास्ट 8 ईयर? सो दैट इज 31% को का एब्सोल्यूट बेसिस पे बीट किया, और हर साल निफ्टी को 11% से बीट किया है। अगेन यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है बीट करने की, बस एवे ही हो गया हूँ, ओके। इफ आई हैड इन्वेस्टेड इन निफ्टी तो मेरा जो ये वर्थ दिख रहा है वो 50 लाख से कम रहता था, ओके। अगेन दिस इज द डेटा ऑफ September 2025. Now, what is the current value of this portfolio and the agenda why I took this session especially today? Okay, so last week the portfolio made new high. So धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्च के बाद जो रिकवरी आई, तो मार्च तक पोर्टफोलियो 1.6 1.7 के बीच में ही था, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बढ़ के तो लास्ट वीक के पोर्टफोलियो ने 2 करोड़ क्रॉस कर लिए। 2.07 करोड़ की वैल्यू है अभी। तो एक्सआरआर जैसे टाइम ड्यूरेशन जो 8 साल था वो अभी 10 साल के आसपास चले गए हम, तो ऑब्वियसली कैगर उतना नहीं बढ़ा हुआ दिखा, क्योंकि हमने एक साल और लैप्स कर लिया है। निफ्टी का कैगर जो था वो घट गया, जो लास्ट साल जो कैगर दिख रहा था निफ्टी का 13.5, वो 12% पे आ गया। अगर मैं निफ्टी में अगर मैं इन्वेस्ट करता तो जो 13.5 का जो एक्सआरआर दिख रहा है वो आज 10.3% पे आ गया, ओके। सो निफ्टी का कैगर इज निफ्टी के स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। निफ्टी का एक्सआरआर यानी जिस दिन मैंने निफ्टी में सिप किया है उस दिन के हिसाब से मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जाने के बाद एक्सआरआर कितना बना है मेरा, ओके। जब हम सिप मोड में रहते हैं तो हम कैगर नहीं एक्सआरआर कैलकुलेट करते हैं, ओके। एंड नाउ अगेन वी कैन सी हियर के एक ब्रॉडर व्यू अगर देखें तो अगेन निफ्टी को हमने काफी लाइक 12% से बीट किया है, 12-14% के एक्सआरआर से बीट किया है। निफ्टी और अपनी जो गैप 50 लाख की थी लास्ट साल तक, वो गैप बढ़ गई है, यानी वी हैव आउट परफॉर्म निफ्टी टू गेट लिटिल बिट मोर रिटर्न्स देन निफ्टी, ओके। यू कैन सी हियर मोर और लेस माय नेचर इज टू इन्वेस्ट इन मिड और स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप। तो लास्ट साल मेरे 90% के आसपास स्मॉल कैप थे, इस बार थोड़े से 87% दिख रहे हैं मिड कैप, और लार्ज कैप में 11-12% इन्वेस्टेड हूं मैं लगभग, ओके। एंड दीज आर द सेक्टर्स। सो इंजीनियरिंग सेक्टर में थोड़ा ये जीरोधा का डेटा है, तो जीरोधा के सेक्टर वियर्ड हो सकते हैं, बट इट्स लाइक कि हर सेक्टर में लेस देन 20% का मेरा एलोकेशन है एज ऑफ नाउ, ओके। हाउ मच आई इन्वेस्टेड इन लास्ट 2 ईयर्स? तो लास्ट 2 ईयर्स में मैंने लगभग 13 लाख इन्वेस्ट किए हैं। तो वही जैसे मैंने बोला कि सैलरी का थोड़ा पार्ट सिप में जाता है, थोड़ा पार्ट ईएमआई में जाता है, हमारे यहाँ घर खर्चे में जाता है, लाइक मेरे वाइफ के सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगेन दिस इज ओनली रुचा's पोर्टफोलियो, माय पोर्टफोलियो इज डिफरेंट, ओके। दिस इज जस्ट माय वाइफ पोर्टफोलियो, ओके। देन यू कैन सी हियर देयर वर विड्रॉल, जो मैंने कहा कि हमने 23 में कुछ विड्रॉल्स किए थे, तो ये विड्रॉल्स भी मैंने यहाँ पे ये किए हैं। डिविडेंड जो है आज तक डिविडेंड 2.9 लाख का आया है, बट हर साल 50 to 60 लाख का, और डिविडेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे पोर्टफोलियो बढ़ रहा है डिविडेंड बढ़ रहा है। आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड टू बाय द डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स, बट फॉर्चुनेटली वी आर गेटिंग सच डिविडेंड्स, ओके। सो नेट इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो 80 लाख है, एंड अगेन लाइक लास्ट 2 साल में उसमें से 13 लाख इन्वेस्ट हुई है। इसलिए फिर लाइक नेट इन्वेस्टेड वैल्यू अगर हम मान लो 66-68 लाख कंसिडर करते तो वो हिसाब से ये कैगर क्लियरली जस्टिफाइबल है, ओके। yeah, these are the allocations. You can see here these were last year's allocation, these are current year's allocation. So you can see here what are, so it's zoomed actually, जो इमेज ये थी वो जूम हुई है यहाँ पे। अगेन लाइक आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड कि मेरा ये सेक्टर में इतना allocation हुआ है, बट आई मेक श्योर कि 25% के ऊपर allocation नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है वो सेक्टर में तो पूरे पोर्टफोलियो को उसका
भुगतान करना पड़ता है। ये साल केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा किया है, थोड़ा हेल्थ केयर यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी थोड़ा अच्छा किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ी होल्डिंग मेरी एबी कैपिटल थी, ये पोर्टफोलियो में वो एग्जिट किया है ना, तो ये जो है फाइनेंशियल्स का लगभग 21% का एलोकेशन था प्रीवियसली लास्ट ईयर में। तो इस साल मैंने कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स को, एक वन ऑफ द स्टॉक वाज एबी कैपिटल, मैंने ट्रिम किया है, उसको री इन्वेस्ट किया है दूसरे सेक्टर्स में। यू कैन सी हियर सॉफ्टवेयर का एलोकेशन, ओके यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे भी ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये पीक ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री था। जैसे कुछ शेयर हमारे जो भाव में लास्ट साल अवेलेबल थे, अभी वो 30 40 50% से गिरे हुए हैं, इसलिए एलोकेशन थोड़ा कम दिख रहा है। कम यानी आई हैव पंप्ड मोर इन सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई, नहीं तो ये 6 या 5% दिखता था सॉफ्टवेयर का एलोकेशन। एंड अगेन बाकी 2 3 सेक्टर्स का एलोकेशन बढ़ने के कारण भी ये सॉफ्टवेयर का एलोकेशन थोड़ा कम दिख रहा है। ओके, सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, लाइक लाइक नाउ वन पॉइंट इज लाइक, जो ये मेरा प्लान, मैंने लास्ट साल का ये प्लान था। प्लान क्या था भाई, जो मेरी लास्ट साल की सितंबर की इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल में कैसी परफॉर्म करेगी। ओके, तो एक्चुअली ये एक्सेल कभी काम नहीं करेगी, ये मैंने जस्ट एक पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए एक्सेल बनाई है। मैं बहुत सारे एक्सेल बनाता था 2014-15 के पहले, बट मैंने एक्सेल बनाना छोड़ दिया। ये एक्सेल बनाने का रीजन है कि हर बंदे को अपने गोल्स पता रहने चाहिए, कि मैं हर साल कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मार्केट 10 12 15% से रिटर्न दे रहा है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से ग्रो होनी चाहिए। सो जस्ट टू सेट अ गोल, आई एम शोइंग दिस एक्सेल। ओके, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 20% ऑफ द वर्थ शुड ग्रो। ओके, दीज आर नॉट एक्चुअल रिटर्न्स, बट द वर्थ शुड ग्रो बाय 20%। तो उसमें 12 से 15% का निफ्टी परफॉर्म करेगा, एंड 8 से 5% का एनुअल सिप ये अकाउंट में जाएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है एक्चुअली। तो ये 20% का रिटर्न नहीं है, बट दिस इज निफ्टी और एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस द सिप। सो नेटवर्थ जो है वो 20% से बढ़ेगी, ऐसा सोचा है। ओके, सो लास्ट साल के हिसाब से अगर मैं प्लान करता हूँ, तो एक, जब मेरी वाइफ या हम 40, आई एम ऑफ सेम एज, तो जब हम 51 एज के हो जाएंगे, तो हमारे 10 करोड़ वर्थ हो जाएंगे फॉर दिस पोर्टफोलियो। ओके, एंड अगर मैं डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा जो ये वर्थ है वो 60 लाख से लगभग 70 लाख से बढ़ जाएगा। अगर मैं अकाउंट में जो डिविडेंड आया उसको शिद्दत से अगर मैं इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आपका कंपाउंडिंग थोड़ा फास्ट होगा। ओके, तो अगर मैं डिविडेंड को इन्वेस्ट करता हूँ, तो कितना अल्फा रिटर्न होगा विदाउट डिविडेंड एंड विद डिविडेंड का डिफरेंस मैंने निकाला, तो वो दिखता है 7% का एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट होता है। दैट इज 70 लाख एक्स्ट्रा जनरेट होते हैं अगर मैं डिविडेंड को इन्वेस्ट करता हूँ तो। अब ये हुई 11 महीने की फिगर, जब मेरा पोर्टफोलियो वर्थ 1.6 सीआर का था। ओके, नाउ अभी गोल कैसे चेंज हुआ, देखो। अभी जो वर्थ है, वो जो हमने सोचा था कि दिसंबर में 2 करोड़ के पास होना चाहिए, बट वो 2 करोड़ ना अगस्त में ही अचीव हो गया है। ओके, तो इनफैक्ट एक लगभग 11 लाख ज्यादा अचीव हो गए हैं। ओके, तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक 5% का और शायद दिसंबर तक के रिटर्न आ सकता है पोर्टफोलियो में। ये मेरे कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन माय इन्वेस्टमेंट्स। ओके, मेरे इन्वेस्टमेंट्स के भी, मेरे स्टॉक्स के कुछ एक्सपेक्टेशन है, अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट होते हैं, अगेन लाइक दिस विल बी नॉट एक्यूरेट। जैसे मैंने कहा कि अभी पहले हम ओवर अचीव हो गए हैं पहले ही, राइट, तो हो सकता है ये पोर्टफोलियो फ्लैट या नीचे भी गिर जाए दिसंबर तक। दिस इज जस्ट टू गिव आइडिया। ओके, तो जैसे मेरा जो गोल है, दिसंबर का गोल ना 4 महीने पहले ही अचीव हो गया है, तो ये गोल पहले अचीव होने की वजह से मेरा जो विदाउट डिविडेंड का मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 10 करोड़ 10 लाख बनेंगे, वो हो गया है 11 करोड़ 50 लाख। तो जैसे हम आउट परफॉर्म करते हैं, अपने खुद के गोल कम या ज्यादा हो सकते हैं। ओके, अगर हम अंडर परफॉर्म करते हैं तो गोल थोड़ा कम हो जाएगा, ये केस में गोल थोड़ा ज्यादा हो गया है। एंड अगेन अगर डिविडेंड डील, अभी यहाँ पे डिविडेंड डील मैंने ना बहुत कम पकड़ी है, तो मेरे ख्याल से मुझे लास्ट साल ऐसा लगा कि पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, तो मैं शायद थोड़े हाई डिविडेंड के स्टॉक्स में पैसे लगाऊंगा, बट एज पर माय नेचर ऐसा नहीं हुआ। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड लास्ट 2 इयर्स, आई गॉट जस्ट 0.3 to 0.5% का डिविडेंड। ओके, तो इसलिए फिर मैंने ये डिविडेंड डील जो ये इसमें थी 0.7%, यहाँ पे मैंने 0.5% का डिविडेंड डील कंसिडर किया है। इसीलिए जो अल्फा है वो कम जनरेट हो रहा है, यहाँ पे अल्फा, प्रीवियस केस में अल्फा ज्यादा जनरेट हो रहा था। फिर भी अगर मैं डिविडेंड री इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे गोल्स का जो डिफरेंस है वो, यानी इफ आई डोंट इन्वेस्ट द डिविडेंड एंड इफ आई इन्वेस्ट द डिविडेंड, उसमें ये डिफरेंस दिखेगा जो ज्यादा बड़ा नहीं है। एक्चुअली अगर डिविडेंड डील ज्यादा होता है, तो शायद ग्रोथ थोड़ा फास्ट होगा ये केस में। ओके, नाउ यू कैन सी हियर हाउ गोल चेंजेस। अगर ये भी समझ के चलो ना, अगर मैं सिर्फ ज्यादा करता हूँ, ऐसा मान लो कि रिटर्न ज्यादा नहीं है, बट अगर मेरा सिर्फ ज्यादा रहता था, तो भी मेरा गोल जो है वो बढ़ जाता था। ओके, नाउ अगेन हमारा जो विजन है ना, बहुत इन्वेस्टर्स का जो मार्केट में 8 10 साल भी बिता लिए ना, हमारा विजन क्या रहता है, एक 40s वाले लोग बोलते हैं यार हम ना 50s में रिटायरमेंट हो गए, तो वहां तक की कैलकुलेट करते हैं। बहुत जो बच्चे हैं 20 25 साल के या 30 साल के, वो बोलते हैं यार मैं ना 45 में रिटायरमेंट लूंगा। ओके, बट हम ना 50 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद हमारे पोर्टफोलियो कैसे दिखेंगे, इसके बारे में हम बहुत बार सोचते नहीं। ठीक है, तो एक लेमन टर्म्स में जैसे मैं बोलता हूँ कि सर 80 साल की उम्र में मुझे मिले, तब जो पोर्टफोलियो का वर्थ था वो काफी ज्यादा था, राइट। तो वैसे अगर हम सोचे कि यार 60 70 80 में हमारा वर्थ क्या बनेगा, राइट, तो मैंने सिंपल वही किया है कि मैंने यहाँ पे भी 18% का रिटर्न कैलकुलेट किया है हमारी उम्र के, यानी मेरी उम्र के, अभी मैं 42 हूँ, अगले 29 साल के लिए मैंने 18% कैलकुलेट किया। वो क्यों किया मैं बताता हूँ आपको, उसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है। तो यू कैन सी हियर, इफ आई ग्रो विद 20% एंड देन लाइक आफ्टर 50 मैं थोड़ा सिप कम कर दूंगा, या फिर मेरा जो डिविडेंड यील्ड है ना, वो मैं खुद के खर्चे के लिए यूज करूंगा। यानी डिविडेंड यील्ड जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यानी आज से
10 साल के बाद जब हम जॉब नहीं करेंगे, यानी मेरी वाइफ अगर जॉब नहीं करती है, तो उसको जो डिविडेंड है वो 7.5 लाख के आसपास मिल सकता है। ओके, आई एम अगेन कंसिडर 0.5% ऑफ डिविडेंड। ओके, एंड यू कैन सी हियर आफ्टर 30 years द कंपाउंड हाउ कंपाउंडिंग लुक्स लाइक। ओके, 50 साल की उम्र में 10 करोड़, 60 साल की उम्र में उसका हो जाता है 50 करोड़। आफ्टर एवरी 10 years इफ आई कंपाउंड बाय 4x देन ऑब्वियसली मेरा वर्थ उतने पैसे बढ़ेगा, एंड सो ऑन। सो 70 साल की उम्र में यू कैन सी हियर, एनीवन कैन टेल हाउ मच यू कैन सी हियर आफ्टर 30 years। आप बोलोगे यार ये 30 years क्या, यानी ये फेकुचंद कहानी है। ऐसा नहीं है, ये रियल कहानी है। 8 साल 10 साल पहले जब भी चालू किया था जीरो से हमने, राइट, यू कैन सी उसका 2 करोड़ बन गया है एक्चुअल में, एंड अभी वो कंपाउंडिंग जारी रहेगा, राइट। सो एनीवन कैन रीड दिस फिगर। और 60s में, अगर हम 60s में भी आते हैं आफ्टर 20 years फ्रॉम नाउ, नीलेश कैन यू रीड, कितना दिख रहा है क्या आंकड़े आपको? हेलो हेलो, हेलो। या हाँ मैं कैन यू सी दिस फिगर्स? 277 crores. Yeah, 277 crores, and yeah, again, this is, I think this is स्टिल लो, दैट्स व्हाट आई सी। अब इतने फास्ट कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि निफ्टी लास्ट 25 साल में 15% के कैगर से बढ़ा है, 14%, 14-15% के कैगर से बढ़ा है लास्ट 25 साल में। फ्यूचर में निफ्टी शायद उतने कैगर से बढ़ेगा नहीं, मे बी 12-13% के कैगर से बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी अगर आती है निफ्टी में, यानी टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक, जैसे मान लो इंडिया का कोई फेसबुक क्रिएट हो गया, इंडिया का कोई टेस्ला क्रिएट हो गया, इंडिया का कोई माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट हो गया, अगर टेक्नोलॉजी के स्टॉक आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो ही निफ्टी 15% के ऊपर कैगर कर सकता है। बट हमारे रिटर्न्स ये निफ्टी से इनलाइन नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जो स्पेस ट्रैक कर रहे हैं, 5,000 करोड़ कंपनियां लिस्टेड में है, लिस्टेड स्पेस में है। अगर मुझे 15, 20, 25% कैगर के रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनी अगर मिलती है, तो मेरा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली निफ्टी से ज्यादा ही रहेगा। ओके, एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि अभी ये पोर्टफोलियो को 10 साल की जर्नी हो गई है। ओके, तो ये पोर्टफोलियो में भी मल्टीबैगर जनरेट हो रहे हैं। 10 में से 2 स्टॉक आपके 10, 15, 20x होते हैं जब आप अच्छे स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हो। तो जो मैं सोच रहा था 14-15% का कैगर मेरे पोर्टफोलियो में आना चाहिए, ड्यू टू सच मल्टीबैगर इफेक्ट मेरा पोर्टफोलियो ऑब्वियसली 4-5% से ज्यादा का रिटर्न देना ही है। ओके, अगेन लाइक दिस इज नॉट अ रूल, बट इफ यू आर लकी, यू आर इन्वेस्टेड एट राइट प्राइस, और इफ यू आर सिपिंग एनी बिटन डाउन स्टॉक्स विच विल लेटर परफॉर्म, देन ऑब्वियसली तुम्हारा अल्फा हर साल एक्स्ट्रा जनरेट होना ही है। एंड उसके साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो जो इंट्यूजन है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उस वजह से भी आप 1-2 टक्का एक्स्ट्रा पकड़ लो। एक्सपीरियंस की वजह से भी 1-2% का रिटर्न एक्स्ट्रा आता है। वो कैसे आता है वो अपन आगे के कुछ एक्सेल में देखेंगे, 1-2% का एक्स्ट्रा अल्फा कैसे जनरेट करना है। ओके, सो या या अगेन नीलेश, दिस वाज द प्रीवियस प्लान। एक्चुअली लास्ट साल का जो डेटा था उस हिसाब से था, बट इस साल जो नया पोर्टफोलियो बना है, तो जो आपको 277 करोड़ दिख रहे थे, तो 71वें साल में बुढ़ापे में हमारे पास उससे 60-50 करोड़ ज्यादा रहेंगे। इट इज 320 करोड़। ओके, एंड अगेन इसमें से फिर लाइक जैसे आफ्टर 50 वी कैन विड्रॉ द मनी। वैसे भी मुझे अभी आदत हो गई है, मैं खुद का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उससे विड्रॉ करता ही हूँ, राइट। तो ये भी पोर्टफोलियो में से हम थोड़ा बहुत विड्रॉ करेंगे। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग के 10 करोड़ पे लगभग 7-8-10 लाख के आसपास हमारा डिविडेंड डील भी रहेगा, तो हमें ज्यादा स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं हर साल, जो हम बोलते हैं ना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स, वो करने की शायद जरूरत कम पड़ेगी हमें। ओके। Yeah, I'm a basic question. For हम्म example, my हम्म salary is like I'm getting 2 lakh per month, okay? हम्म। And my जो खर्चे भी है वो भी नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं है ऐसा उल्टा पुल्टा, ओके? बराबर। तो कितना परसेंटेज एक लॉजिकली अपन सिप करना चाहिए एट द एज ऑफ 38-39? ओके, देखो जितना एक्सपेंस है एंड उतना आई एम तो, इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 10 years. या सो जितना खर्चा है उतना तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, राइट। तो बचा कुछ हाँ है नहीं। वो तो अगेन यहाँ है। पे देखो यार, तुम्हारा सैलरी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस है, तुम स्केल कर रहे हो दूसरे लोकेशन पे, अगर तुमने बिजनेस खोला तो तुम्हारा डायरेक्ट इनकम 50% से बढ़ जाता है, तो यू कैन कंट्रोल दैट इनकम, राइट। बट सैलरी का कंट्रोल नहीं है। सैलरी फिर आपको एक ही फोकस करना हम्म, पड़ेगा, यार मुझे ज्यादा से ज्यादा सेविंग कैसी होगी, मैं एक तो अच्छा परफॉर्म करके मैनेजमेंट से निगोशिएट करूं, हम्म, या फिर जॉब चेंज करूं। आपके कंट्रोल में आपके सैलरी का ये नहीं है, आपका कंट्रोल हम्म, कब रहेगा जब आप स्विच करोगे। तो अवर टारगेट शुड बी, यार देखो जितना खर्चा होता है तो आना ही। जस्ट एग्जांपल, अभी 4 लोगों का पुणे जैसे सिटी में लगभग कुछ भी करो, स्कूल फीस छोड़ के बेसिक खर्चा ही 50-60 लाख है, 50-60 हजार है मंथली। ओके, उसको अगर खुद, अगर तुम्हारी correct. मेड मेड तुम्हारे फुल टाइम कोई बेबी सीटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा खर्चा तुम कम कम हो जाएगा, राइट। तो वही है कि, और अगेन लाइक हमें ऐश भी करना ही है यार, साल में एक आधी ट्रिप आजू बाजू, एक 2-4 साल में एक आधा इंटरनेशनल ट्रिप हम मारने वाले, राइट। उसका भी थोड़ा बहुत, अरे देखो यार, हर हर बार तो अपन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा फन भी चाहिए लाइफ को राइट। तो गाड़ी घोड़े भी हो गए, शायद घर भी अपग्रेड होगा। सो दीज आर द अनकंट्रोल्ड थिंग्स, बट द ओनली ऑप्शन वी हैव टू इंक्रीज द सैलरी नो मैटर व्हाट। दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। ओके, अगेन लाइक नाउ आई जस्ट आई टोल्ड के पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 2.7 सीआर हो गई है। बट कैसा है कि ये ऐसा टाइम है कि ये पोर्टफोलियो की ऐसी वैल्यू है कि मेरा सिप शायद सफिशिएंट नहीं है पोर्टफोलियो के लिए। तो as I have 15-18 years of experience in market, okay, so what I thought, and again I am following this practice since I guess 7-8 years, तो जब मार्केट गिरता है, ओके, मैं थोड़ा बहुत लोन भी लेता हूँ जो बहुत कम है, एंड वो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ।
तो जब पोर्टफोलियो छोटा रहेगा तुम्हारा, तो आप बोलोगे यार मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो, मैं 10 लाख का लोन लेके इन्वेस्ट करता हूँ। 10 लाख का पोर्टफोलियो, दैट इटसेल्फ इज सेइंग यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट एंड यू आर प्लानिंग टू टेक 100% लोन ऑफ योर वर्थ, विच इज वेरी रिस्की। तो जब पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो मुझे ऐसा लगता है छोटा मोटा लोन लेके मार्केट क्रैश के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने में कोई हरकत नहीं। लोन भी सोच समझ के लेना चाहिए। ओके, एंड यू शुड अवेयर और कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ के 4 या 5 साल में मेरा रिटर्न कितना बनेगा। मेरा रिटर्न एटलीस्ट, अगर मैं 10% से लोन ले रहा हूं तो मेरे रिटर्न एटलीस्ट 15% के ऊपर चाहिए। अगर मैं 10% का रिटर्न या 12% का रिटर्न या 13% का रिटर्न कर रहा हूँ आफ्टर टेकिंग लोन, दैट मीन मेरा 10 टका तो इंटरेस्ट जा रहा है, फिर 3% के लिए मैं फिर इतना हेडेक लू क्या, साइकोलॉजिकली मैं डिस्टर्ब रहूं क्या, राइट? तो जब आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा लोन के लिए। अभी लोग एमटीएफ यूज करते हैं बहुत कुछ, मैंने देखा है बच्चों को कि 10-10 15-15 लाख पे एमटीएफ लेके 10-10 लाख उठाया है बच्चों ने। तो इट हर्ट्स, और मार्केट इतना वियर्ड है, एंड एमटीएफ इज एग्जैक्टली सेम एज एफएनओ, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो आप जितना एफएनओ में कमाते या गमाते हो ना, उतना ही एमटीएफ में हो सकता है। तो जब एक्सपीरियंस आए तभी आप डेट की बात करो। ओके, तो मैंने क्या किया लास्ट साल, कितना लोन उठाया ये अकाउंट पे, अब 1.6 करोड़ का तब उस टाइम पे पोर्टफोलियो था। तो मैंने लगभग 10% ऑफ दिस पोर्टफोलियो मैंने लोन उठाया है। अब 10% क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट का पार्ट है, अगर ये पोर्टफोलियो 1% भी रिटर्न देता है तो मेरा साल भर का इंटरेस्ट ना वो रिटर्न से कवर अप हो जाता है। तो मैंने लगभग 16 लाख का लोन लिया। तो एक्चुअली ये पोर्टफोलियो की वैल्यू आज के डेट में 1.07 यानी 2 करोड़ 7 लाख, ये विदाउट डेट है। विथ डेट 2 करोड़ 25 लाख है। तो जो इंटरेस्ट लिया था उसमें से कुछ स्टॉक्स बढ़े नहीं, खाली 7-8 टक्का ही मेरे वो लोन के पैसों का रिटर्न आया। सो सी गाइस, व्हाट आई थिंक कि जो पैसा मैं कर्जा लेके डिप्लॉय कर रहा हूँ उसका आरओआई कितना है, उस वो भी मुझे कैलकुलेट करना चाहिए। तो आई शुड मैनेज माय पोर्टफोलियो लाइक बिजनेस। तो मैं फॉर हम्म। एग्जांपल, हम्म। हाँ मैं, हाँ। तो फल आपने लिया था 5-6 महीने पहले, ओके, उस टाइम पे मार्केट ज्यादा गिरा था, तो अभी रिटर्न तो आ गए राइट, 10-12% तो आ गए बराबर। नहीं नहीं, एक मिनट एक लोन मिनट, पूरा मैंने एग्जैक्ट देखो, रिपेमेंट कर दिया या वो उसमें चल रहा है अपना? नहीं अभी और एक मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। ये लोन मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट से लिया था मैंने, 1 साल पहले यानी जून में मैंने लोन लिया था, बट मैंने पूरा विड्रॉल नहीं किया। मार्केट का बॉटम किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, वो पैसों को स्कैटर्ड वे में पूरे साल में लगाया है, और मार्च में वो पैसे खत्म हो गए ठीक है, मार्च का जो बॉटम बना था। तो अभी वो पैसों का रिटर्न नहीं बना है, क्योंकि आप वो पैसों का रिटर्न शायद 7 या 8% के आसपास शायद बना होगा। ओके, बट आई हैव बिटन द निफ्टी इन दैट केस। ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई बिजनेस जैसा ट्रीट करो। बट व्हाट इफ अभी मैंने 10 टके का ही लोन क्यों लिया? क्योंकि 90 टके पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है मेरा, उसमें कोई ना कोई स्टॉक तो होता है कि जो मैं बेच के जिसका रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, राइट? तो मेरा जो इंटरेस्ट पार्ट है ना, वो 90% पोर्टफोलियो से कहीं ना कहीं, ये 10% के इन्वेस्टमेंट से नहीं, बट 90% के कहीं ना कहीं से कवर अप हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन लाइक दिस इज नॉट अ कोर्स टू एक्सप्लेन टू टेक अ लोन एंड इन्वेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग यू जब पोर्टफोलियो बड़ा होगा, सो वी नीड टू स्केल द पोर्टफोलियो। ओके, अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। जब तक आपका 1 करोड़ नहीं बनता है ना, यानी जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आता है मार्केट का, तब तक लोन के बारे में सोचो मत। अगर अभी ऐसे भी सिचुएशन है, कुछ लोगों की सैलरीज बहुत अच्छी होती है, सेविंग अच्छी होती है, तो उनको लोन की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि जो जो लोन नहीं ले रहे हैं और जो तगड़ा पैसा डाल रहे हैं, जैसे एग्जांपल कोई 60-70,000 1 लाख 2 लाख जो मार्केट में हर महीने डालने की कैपेबिलिटी है, उनको लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। उनका परफॉर्मेंस मेरे से बेटर रहेगा, बिकॉज आई हैव टू ऑल्सो पे द इंटरेस्ट। अगर मार्केट 1 साल या 2 साल खराब रहता है तो मेरे इंटरेस्ट का रिकवरी आने को 3 साल लगते हैं। इंटरेस्ट का रिकवरी बोल रहा हूं मैं, खाली परफॉर्मेंस तो छोड़ ही दो तुम, राइट? सो व्हाई आई एम टेकिंग रिस्क, बिकॉज पोर्टफोलियो इज ह्यूज, आई हैव सम एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। सो स्केलिंग थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है? एंड या स्केलिंग करने के बावजूद भी जो एक्सआरआर है वो डिसेंट है। मार्केट अगेन लाइक बॉटम ऑफ मार्केट में एक्सआरआर कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए। जब मार्केट 28,000 30,000 पे होगा तब आपका स्मॉल कैप पोर्टफोलियो जो है वो और निखर के आएगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर मेरी होल्डिंग सही है तो। ओके, सो स्केलिंग इज द ऑप्शन। तो यहाँ पे भी प्लान ऐसा है नीलेश, मैंने वो रिपे नहीं किया है। मेरा प्लान ऐसा है, जब तक मेरे सर्टन पैसे ये पोर्टफोलियो में नहीं बनते तब तक मैं उसको रिपे नहीं करूंगा। अभी रिपे कब करने का प्लान है मेरा? 10 साल के बाद मेरा रिपे करने का प्लान है एज ऑफ। हेलो हेलो हेलो, ओके मैं, हाँ, या यू आस्क समथिंग तो अबाउट ईएमआई रिपेमेंट? भर रहे हो सिर्फ, हाँ, बताओ बताओ। मैं खाली इंटरेस्ट का पार्ट भर रहा हूँ हम्म। उसका। अगर मैं पर्सनल लोन लेता, सो मैं मेरी जब सैलरी थी थोड़ा बहुत ओके। मैं पर्सनल लोन लेता था, तो ऑटोमेटिकली 5 साल में मेरा लोन जीरो हो जाता था, राइट? सो अभी ये स्केलिंग करने की वजह से, हम्म। अभी मेरा अगर मैं स्केलिंग नहीं करता तो मेरे पोर्टफोलियो का मेरे को एक्सपेक्टेशन विदाउट डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, मेरे जो 30 साल, अभी 30 साल के बाद ही आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा, बट मैं अगर 10 साल का भी लेता हूँ तो 10 साल में अगर मेरे 1.50 11.50 करोड़ अगर बन रहे हैं, तो अगर मैं लोन लेके करता हूँ और सेम, अभी देखो ना, 20% कैगर अगर मेरा साल का बन रहा है वर्थ का, जैसे मैंने कहा कि उसका थोड़ा पार्ट सीप रहेगा, थोड़ा परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रहेगा। तो 11 पॉइंट जो 60 लाख जो बन रहा था, अगर मैं डेट लेके यही चीज कर रहा हूँ एंड विद द सिमिलर रिटर्न्स, तो जस्ट मिनट, ओके, उसके नहीं, इसमें सॉरी वो इमेज अपडेट नहीं की है मैंने यहाँ पे, सॉरी वो इमेज अपडेटेड नहीं है, माय बैड। एनीवे, तो उससे थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट होने वाला है। ओके, ओके, सो आई जस्ट आई टोल्ड के लाइक अभी मेरा भी मैंने एग्जैक्टली जून 2023 में मैंने जॉब छोड़ा है, तो मुझे मेरी भी कुंडली देखनी पड़ेगी।
राइट, कि मेरा खुद का कैसा कितना क्या आया है। ओके, सो अगेन आई एम 100% इन्वेस्टेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी और प्लॉट और फार्म which I have purchased by purchased explicitly for investments. Okay, nor I have FDs. Okay, so I have seen people who are not 100% invested many times. So I'm 100% invested. Still, like I think my CAGR is better. So इतना भी this is my entire portfolio CAGR, यानी my wife's and my own portfolio का combine बना के अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 20% के 21% के आसपास CAGR आया है, कंसिडरिंग फ्राइडे का जो कुछ भी क्लोजिंग था मेरा, फ्राइडे नहीं, थर्सडे थर्सडे के क्लोजिंग के हिसाब से। एंड यहाँ पे आप बोलोगे यार मिड कैप से थोड़ा बेटर किया है, स्मॉल कैप से थोड़ा बेटर किया है, निफ्टी से काफी बेटर किया है। ओके, बट अगेन यार अगेन दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता तो क्या करते हैं लोग, निफ्टी में भी पैसा डालते हैं, स्मॉल कैप में भी डालते हैं, मिड कैप में भी डालते हैं, और ये तीनों का एवरेज मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 13 14 15% के रेंज में आता है। नाउ आई एम 100% इन्वेस्टेड इन माई ओन एसेट्स और ओन स्टॉक्स। आई थिंक एवरी ईयर आई एम कंपाउंडिंग 5% मोर देन वट एवर दे आर डूइंग। एंड अगेन why I'm doing this, I am just for trying to follow my passion. That's what I can say. Again एंड गोल मेरा एक ही है, नो मैटर व्हाट निफ्टी को बीट करूंगा मैं, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप के जो 25 साल के रिटर्न है निफ्टी से 3 4% ही कम ज्यादा है। निफ्टी 1.5% डिविडेंड यील्ड भी देता है, तो वो जो 3 4% का रिटर्न 2 3 पे आ जाएगा अपना। ओके, सो दिस इज व्हाट माय परफॉर्मेंस इज आफ्टर रिटायरमेंट। अगेन मेरे पूरे 15 साल का रिटर्न मैंने सही में कैलकुलेट नहीं किया है, मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि 15% के ऊपर रहना चाहिए, जो काफी ऊपर है, मैं बस 15% पकड़ के चल रहा हूँ उसको। ओके, सो एनी क्वेरी स्टिल नाउ गाइस? हेलो। समय मेरा क्वेश्चन था, तो फॉर एग्जांपल अपन ज्यादा करके जब डिस्कशन करते हैं तो मार्केट हर 2 3 साल में 30% तो गिरता ही है, राइट? देखो मार्केट एक मोटा मोटा कैलकुलेशन तो बहुत जो लोगों अपन ने। लोन, हाँ 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 जी बोलो। हाँ तो मैं ऐसे मतलब लॉजिक कि लोन लेके अपन जब इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट गिरता है, राइट, उसको जब अप आता है तो फिर वो रिपेमेंट है ना, मतलब फिर से जब गिरेगा तब उस टाइम पे उठा देंगे फिर से, राइट? देखो यार इतना टाइम अगर करते रहता मैं, ठीक है तो मैं 10 15 15 लाख नहीं, मैं 1 करोड़ लोन उठाता था, ठीक है। तो इतना टाइमिंग के साथ नहीं रहता है नीलेश। बहुत बार क्या होता है, जो स्टॉक तुम लोन लेके इन्वेस्ट करते हो ना, अभी मेरे साथ 50% टाइम यही हुआ है, जो स्टॉक मैं लोन लेके इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, वो स्टॉक सबसे बेकार परफॉर्म करते हैं अगले 2 3 साल के लिए, ठीक है। तो लोन लेने की अगर गलती से खुजली भी मेरा होती भी है, मतलब मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि जब लोन अपन कम लेते हैं ना वो ज्यादा भागता है, लेकिन जो ज्यादा में लेते हैं वो करेक्ट वैसे ही है अभी। करेक्ट, तो क्या होता है मोस्टली, लोन एक तो लेना नहीं चाहिए जब तक आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 करोड़ जब तक आप खुद बनाते नहीं हो, दैट मीन्स तुमको एक्सपीरियंस नहीं आया है अभी तक। बहुत सारे लोग 20 30 40 लाख बना के बहुत बार 40 लाख जाता ही नहीं है, 90% लोगों का 40 लाख भी नहीं बनता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, हिस्ट्री अगर खंगाल के देखे, एक तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करना रहता है ना, तो म्यूचुअल फंड हमेशा एटलीस्ट 8 से 10 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड में 1 लाख या 2 लाख साल का डाल रहा हूँ, तो अगले साल में 100% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतनी सेम अमाउंट मेरी सिप जा रही है, राइट। तो अगर निफ्टी 20% से भी बढ़ता है, तो मेरे सिप का जो रिटर्न है वो 10% ही रहता है। 3 साल में आप फिर से उतना ही पैसा अगर डालते हो, स्टेप अप नहीं करते हो, तो निफ्टी अगर मान लो 30% चले गया है, बट आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको एब्सोल्यूट बेसिस पे 15% ही दिखता है, वो भले ही एक्सआईआर में आपको 20 25% दिखेगा, राइट। तो प्रॉब्लम क्या होता है, एंड सडनली चौथे या 5वें साल ना पोर्टफोलियो क्रैश होता है 20% से, तो सामने वाला हर साल 20% डालते जा रहा है, एंड 20% जब क्रैश आता है, यानी 5 लाख पे आप मान लो 20% टूट गया है, यानी बंदे का पोर्टफोलियो 5 लाख इन्वेस्टेड है, 7 लाख पे गया, एंड 7 लाख के बाद 5 साल में 20% या 30% गिर गया मान लो, तो 7 लाख पे 30% गिरने के बाद कितना कितना दिखता है हमें, 5 ही लाख रुपए। यानी 5 साल के बाद बंदा बोलता है कि यार 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट 5 ही लाख दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत सारे लोग, 90% लोग निफ्टी के कैगर को खुद के पोर्टफोलियो से कंपेयर करते हैं, एंड देन दे फील अपसेट। तो लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड है या 15 साल का रिकॉर्ड है, 90% ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 साल के पहले ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फंड्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट, या खुद स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो एटलीस्ट हमें 5 साल का तो भी एटलीस्ट पेशेंस चाहिए अगर खुद कर रहे हैं तो। अगर हम म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा 8 10 साल के लिए आपने सोचना चाहिए। एलआईसी वाले बोलते हैं 18 साल के लिए, बट हम एलआईसी ऑब्वियसली नहीं ले रहे। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली 10 साल ऊपर जाता है तो पोर्टफोलियो ऊपर ही दिखेगा, राइट। सो मेरा क्या बोलना है कि जो लोन लेके जो बात कर रहा हूं मैं, अब अपने को नहीं पता कौन से साल मार्केट, अभी आप 10% 20% गिरा, आप बोलोगे मैं लोन लेता हूँ, व्हाट इफ पोर्टफोलियो फॉल्स आफ्टर दैट? तो निफ्टी का रिकॉर्ड है 50% टूटा ही है निफ्टी क्रैश क्रैश के टाइम पे, राइट। तो क्रैश के टाइम पे आप कितना लोन लोगे, तो 10% ही लेना है आपको, 50% या 100% लोन नहीं लेना है। बिकॉज 50% गिरने के बाद भी, यानी जो कुछ कुछ क्राइसिस जो आए थे, स्लो डाउन जो आया था, जैसे निफ्टी में या सेंसेक्स में 2000 1992 से 2000 निफ्टी ने कुछ नहीं किया है। अगेन आफ्टर 2002 टू आई गेस 4, देन अगेन 2010 टू 2009 10 टू 13 निफ्टी वाज कंप्लीटली फ्लैट। ये लास्ट 2 साल देखो निफ्टी फ्लैट है, राइट। तो ऐसे स्लो डाउन आ सकते हैं, तो इसीलिए फिर ज्यादा कर्जा क्यों नहीं लेने का, क्योंकि स्लो डाउन आ सकता है। अब जब क्रैश आता है ना, तब आप क्रैश का मूवमेंट भी ऐसा रहता है ना नीलेश, की आपको लोन कोई नहीं देगा क्रैश के टाइम पे। कोविड का सिचुएशन ले लो, क्या हुआ, बैंक में जाना ही मना था, जो ऑलरेडी जो ओडी चल रहे थे लोगों के, बैंकों ने फ्रीज कर दिए थे कि भाई नहीं आप विड्रॉल मत करो, नहीं तो पूरा हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप लेमन ब्रदर में जाओ, लेमन ब्रदर में सेम सिचुएशन। आप 2001 के टाइम का याद करके देखो,
2001 टाइम पे तो लोग आईसीआईसीआई से एटीएम नए नए आए थे, लोग विड्रॉ करने के लिए भागे थे, 2002 की बात है। तो जब क्राइसिस आता है तो आपको लोन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्मार्टली वी नीड टू थिंक फ्रॉम वेयर यू कैन बोरो एट बैड टाइम्स, बट अगेन अगेन अब ये अपना बोरोइंग का सेशन हो रहा है, बट पॉइंट इज टू स्केल व्हेन यू आर एक्सपीरियंस यू कैन टेक सम बोरोइंग इफ यू फील सेफ आफ्टर बोरोइंग, अदरवाइज बोरो करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, या सो अभी सिंपल फंडा बताता हूं मैं कि कंपाउंडिंग कैसे होता है, ठीक है। ओके, सो आई हैव जस्ट टुक सम डेटा। ओके, सो 2010 से लेकर 2026 जनवरी के निफ्टी की वैल्यू मैंने उठाई है, 1 जनवरी, हर साल के 1 जनवरी की। अगर मैं हर साल 1 जनवरी को सिप करता हूँ ना निफ्टी में, 2 लाख, चलो मैं स्टेप अप भी नहीं करता, 2 लाख का अगर मैं सिप करता हूँ निफ्टी में, तो आज मेरा जो एक्सआरआर है निफ्टी यानी मेरे इन्वेस्टमेंट का, वो 10% रहता था लास्ट 16 साल, अगर मैं 1 जनवरी को निफ्टी में पैसा डालता हूँ तो। ओके, अब दूसरे ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, निफ्टी में 1 जनवरी को मैं 66% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना मेरा एनुअल प्लान इन्वेस्टमेंट है, और 33% ना मैं जुलाई 1 को कर रहा हूँ, यानी मिड ऑफ ईयर का पहला तारीख। बस मैं अगर ये भी फॉर्मूला यूज किया तो मेरा कैगर जो है वो लगभग 0.7% से बढ़ जाता है। सो 0.7% एवरी ईयर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। ओके, सो जैसे आप देख सकते हो, ये 0.7 की वजह से, 0.7% अल्फा जनरेशन की वजह से, ये और ये पोर्टफोलियो में और ये पोर्टफोलियो में लगभग 5 लाख का डिफरेंस है, लगभग 5 लाख का डिफरेंस है। वाई? बिकॉज हो सकता है मिड ऑफ जुलाई में बहुत बार मार्केट ने, मिड ऑफ ईयर में मार्केट थोड़ा क्रैश या डिस्काउंट में होगा, इसलिए हमें अच्छे रिटर्न मिले हैं। तो वही सेम फंडा है कि नॉर्मल सिप करो जो आपकी प्लान है, जब मार्केट 5% या 10% टूटता है तो सिप को थोड़ा सा 1.5 गुना 2 गुना से बढ़ा दो। तो एवे ही हम कोई भी एसेट्स बाय करें, वो एसेट्स से आपके रिटर्न्स थोड़े बेहतर ही रहेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन आउट परफॉर्म एनी इंडेक्स और एनी एसेट क्लास। क्या? तो डिस्काउंट में थोड़ा बाय करो। ओके, एक पहला रूल क्या लगाया हमने भाई, सिप्स ना रेगुलरली करो, यानी आपको मार्केट के डिस्काउंट्स भी मिल जाए। दूसरा क्या है, थोड़ा आपका इफिशियंसी बढ़ा। इफिशियंसी आई मीन टू से, अगर आप खुद म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो, खुद स्टॉक्स चूज कर रहे हो, तो ट्राई करो कि मेरा ये 12% का रिटर्न 15% कैसा हो? अगर मैं 15% कर रहा हूं तो मेरा ये 18% कैसा हो? अगर हर साल आप थोड़ा बहुत इफिशिएंट हो रहे हो, या लकीली आपको जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ये अल्फा जनरेट होगा, उससे भी आपके रिटर्न्स बढ़ने के हाई चांसेस है। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्टेप अप करो। हर साल जितनी सैलरी हाइक होती है, मैंने देखा है बहुत लोग सैलरी हाइक होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ाते हैं, उनके उल्टे खर्चे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ते। तो जब भी सैलरी बढ़ती है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते जाओ। और एक ऑप्शन ऐड करो, जब भी बोनस आते हैं, कुछ गिफ्ट्स आते हैं, कैश गिफ्ट्स, इंसेंटिव्स आते हैं, राइट, तभी आपका लमसम पैसा भी थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय, यानी इन शॉर्ट मार्केट में जितना हो सके उतना पैसा ज्यादा डालो। बिकॉज यू नो, बिकॉज इफ वी सी इंडिया एज अ ग्रोइंग कंट्री, ठीक है, लास्ट 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी, लास्ट 20 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है, यहाँ से सिचुएशन इंप्रूव ही होने वाली है। लास्ट 10 साल पहले मेरे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक्स थे, बहुत लिमिटेड वर्टिकल्स के ऑप्शंस थे। आज मेरे पास वो ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में और एआई या टेक्नोलॉजी की कंपनी आएगी, वो आपको और ज्यादा मौका देगी, तो हमारे रिटर्न्स काफी अच्छे बढ़ने के चांसेस है फ्यूचर में। एंड अगेन वी आर नॉट टेक्नोलॉजी ओनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आप यूएस ले लो, कोरिया ले लो, जापान ले लो, रिसेंटली जो रैली आई है, ऑल दीज कंट्रीज वेयर जस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो 50 60 70% का जो वैल्यूएशन है कंपनी का, वो टेक्नोलॉजी से ही आता है। बट इंडिया इज वेल डाइवर्स्ड कंट्री, हर सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हेल्थ केयर लो, आप बैंकिंग लो, ये 3 कंट्रीज में बैंकिंग बढ़ ही नहीं रही है, बैंकिंग के इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। इंडिया में बैंकिंग के भी ऑप्शंस है, इंडिया में कंजम्पशंस के ऑप्शंस है, सादा सिंपल राइस नमक, जो कंजम्पशन के एफएमसीजी के स्टॉक्स है, उसके बहुत ऑप्शंस है हमारे यहाँ, राइट। तो हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो इंडिया है, वो हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट इक्वली डाइवर्सिफाइड है। तो जो फेल होने का या कोलैप्स होने का चांस हमारा बहुत कम है। अगर टेक्नोलॉजी एआई बबल फट गया तो मे बी ये कंट्रीज, ये नैस्डैक बोलो या जापान या कोरिया का इंडेक्स है, वो क्रैश हो सकता है। कंपैरेटिवली हमारा इंडिया कम क्रैश होगा, बल्कि रिकवर भी बहुत फास्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, सो अगले 10 साल या 15 साल तक मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है बट द ग्रोथ ऑप्शन इज देयर फॉर अस। सो फिर मैं अगले 5 साल या 10 साल का पैसा अगर मैं अभी थोड़ा ज्यादा डालूं, यानी मैं अगर बेस क्रिएट करूं, मैं जैसे मैंने 2 करोड़ का जो बेस क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, ये पोर्टफोलियो जो शेयर किया है, अभी वो बेस पे ही पूरा कंपाउंडिंग होगा, भले ही मैं सिप कम कर दूं। अभी लोन इज द ऑप्शनल थिंग, आई देयर इज एनी टाइम आई कैन, इफ रैली कम्स आई कैन कट डाउन माय लोन। बट इफ आई सी द बेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड, नाउ द बेस विल कंपाउंड, फिर भले ही मैं उधर सिप थोड़ी कम कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पोर्टफोलियो। ठीक है, सो ट्राई टू इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन इन नेक्स्ट 2 3 4 5 years। ओके, सो दैट विल ऑल्सो, द बेस विल क्रिएट एंड दैट विल ऑल्सो कंपाउंड। नेक्स्ट सिंपल ऑप्शन जो हम हमेशा कहते हैं कि हम ना कोई स्टॉक जब लेते हैं तो हमें ना ऐसा लगता है कि वो स्टॉक ना अगले अगले मंथ में ना 1 2% देना चाहिए, 6 महीने में 12% देना चाहिए, एक साल में 15 20% का रिटर्न देना चाहिए। चलो हमने वो स्टॉक वैसा चूज कर लिया, मान लो हमारा वो स्टॉक ना हर हर महीने में 2 2% बढ़ रहा है, तो मैं ना 2 साल वो स्टॉक को सिप करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे एक स्टॉक का अच्छा लोकेशन करना पड़ेगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर महीने इसमें सिप कर रहा हूँ। तो 2 साल के बाद मेरे रिटर्न्स ये स्टॉक में जो इन्वेस्टेड है उससे 20% ज्यादा रहेंगे, बिकॉज मैं ऊंचे दाम में भी वो स्टॉक ले रहा हूँ। दिस इज द स्टॉक प्राइस, एवरी मंथ आई एम सिपिंग 10,000 रुपीज। सो मुझे वो स्टॉक्स के इतने यूनिट्स हर महीने में आ रहे हैं। अभी दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है कि वो स्टॉक प्राइस ना 12 महीने बढ़ता ही नहीं है, और 13वें महीने में वो स्टॉक 20% बढ़ जाता है। फिर से दूसरे साल में 12-13 महीने वो स्टॉक हिलता ही नहीं है, और लास्ट महीने में वहां से 20% बढ़ जाता है। तो मेरी जो यूनिट्स में बाय कर रहा हूं, वो पहले केस से ज्यादा यूनिट्स आएंगे ये दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा अगर मैं ऑप्शन अगर मेरे साथ होता है, तो मेरा जो रिटर्न्स है ये स्टॉक में, वो पहले केस में 20% था, ये केस में 32% हो रहा हुआ है। तीसरा केस है, ये स्टॉक ना 2 साल हिलता ही नहीं है, और 24वें महीने में लाइक जो ये स्टॉक जितने रिटर्न दे रहे हैं उतना ही रिटर्न दे रहा है एकदम 24वें महीने में। तो इस केस में क्या हुआ, 100 के भाव में मेरे पास ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट हुए हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये दोनों केस से ज्यादा यूनिट्स है, तो मेरे रिटर्न्स भी ज्यादा रहेंगे। तो मेरे रिटर्न्स ये केस में 40% के ऊपर गए हैं। ओके, अब मान लो कॉमन सिचुएशन जो 2 साल की सिचुएशन थी स्टॉक मार्केट की। तो मेरा 100 का स्टॉक 97, 97, 80, 81, 80 पे आता है, एंड धीरे धीरे बढ़ता है, एंड वो सेम ही रिटर्न दे रहा है जितना ये तीनों केस में हुआ है। तो ये केस में भी जो डिस्काउंटेड वैल्यू थी उसमें मेरे ज्यादा यूनिट्स आए, उस वजह से मेरे रिटर्न्स 2 साल के बाद ये स्टॉक में 50% होता है। सो व्हाई द हेल वी वांट आवर स्टॉक टू ग्रो एवरी टाइम? इफ यू हैव गुड स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, देन प्रे टू गॉड, भाई तू डिस्काउंट दे, तू नीचे गिर, टेम्पररी नीचे गिर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि गिरे हुए स्टॉक हमेशा अच्छे होते हैं। यस बैंक 5 साल से एक ही लेवल पे है, कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जाके 80 का स्टॉक 200 का स्टॉक मुझे 20 रुपए में मिला है तो मैं ले लूं। तो आप अच्छी कंपाउंडिंग वाली कंपनी यहाँ देखो और उसके लिए प्रे करो। सो गुड स्टॉक, गुड बिजनेस इन बैड फेज आर गुड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो so in this case, our fourth case, we will get better returns than these three cases. Okay, now very important point. ये I don't know how many people are there, but ठीक है 9 लोग हैं। एक्चुअली ना हम बहुत बार क्या करते हैं, अरे यार ट्रिप ट्रिप करनी है मेरी, मुझे ना वॉच लेनी है, मुझे मोबाइल लेना है। हम क्या करते हैं, हमारे जो सिप का जो रूल है, तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी, यार आपको गवर्नमेंट या मैं या कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इट्स योर चॉइस। ओके, हम क्या करते हैं, कोई अर्जेंट या अनवांटेड चीजों की वजह से, विच आर नॉट नेसेसरी। देखो, अगर आप आपके घर में ऑपरेशन होते हैं या कुछ इमरजेंसी आती है जिसमें सही में पैसों की जरूरत है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई हैव सीन कि जब एक्सपेंसेस कोई महीने में ज्यादा हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आपका सिप ना करते ही नहीं, वो महीने में आप सीपी नहीं करते। ओके, तो साल में ऐसे 2-3 महीने इंश्योरेंस आ गया भाई, कुछ और चीज आ गई, कुछ और चीज आ गई। तो आप क्या करो, ऐसे चीजों को ऐसे चीजों के लिए अलग से पैसे निकाल के, सो दैट यू विल हैव सम ओन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसे पैसे निकालेंगे, जैसे फीस भर रहे हैं बच्चों की, तो 4-5 हजार महीने का ना साइड में निकाल के रख दो पहले ही। ऐसा मत करो कि मैं ना वो लास्ट मंथ की सिप नहीं करूंगा, क्योंकि फीस भरनी रहेगी मुझे मार्च महीने में बच्चों की फीस भरनी रहती है। व्हाट इफ अगर मार्च में मार्केट गिरा हुआ है, यू विल नेवर नो, राइट? तो मैं बोलूंगा कि आप थोड़े आपके एक्सपेंसेस, नीड्स एंड वांट्स को प्लान करो, एंड डोंट डैम अवॉइड द सिप्स। व्हाई? बिकॉज एवरी सिप विल कंपाउंड। अगर मैं 15% के कैगर से मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, तो मैं ये जो आज के 20 लाख जो मैं डाल नहीं रहा हूं, वो 25 साल के बाद या 20 साल के बाद, जैसे एग्जांपल, ये 25 साल का सिप है, 30 300th मंथ, उससे एक मंथ कम, उससे एक मंथ कम, तो ये दीज आर द मंथ्स टिल नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो अगर मैं आज ये 20 हजार नहीं डाल रहा हूं, तो 25 साल के बाद 15% कंपाउंडिंग से आपका ये 20 हजार 6.5 लाख बनने वाला है। आर यू विथ मी गाइस? तो अगर मैं 12 महीने के बाद ये सिप अगर मैं नहीं करता हूं, तो मेरा ये 12वें महीने का जो सिप है वो 6.25 लाख बनने वाला है अगले 24 साल में। तो मैं उसको क्यों ब्रेक दूं ना? और अगर मार्केट इस टाइम पे गिरा है हुआ है, तो आपको ये पैसा ज्यादा रिटर्न देगा। मार्केट गिरा है तो ऑब्वियसली जो 15% का कैगर बोल रहे हो, तो मार्केट गिरने के बाद वो हमें 16% का कैगर भी होता है, एक परसेंट थोड़ा ज्यादा रिटर्न आ जाएगा इन नेक्स्ट 24 ईयर्स। ओके, और अगर मैं 2 सीट मिस करता हूं, दैट इज भाई बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने वही एक थोड़ा कैलकुलेट किया कि अगर मैं रेगुलर सिप करता हूं 20 हजार अगले 25 साल के लिए, तो मेरा 5.5 करोड़ बनता है। अगर मैं एक सिप भी मिस कर दिया हर साल, अगर हर साल में एक सिप मिस करता हूं, तो मेरा 40 लाख कम बनेगा। अगर मैं 2 सिप मिस करता हूं, तो मेरा 90 लाख कम बनेगा। अगर मैं एक सिप एक्स्ट्रा, यानी मैं 12 सिप जो मंथली जाते हैं, मैं 13वीं सिप करता हूं, जब मार्केट गिरता है मैं डबल सिप करता हूं, तो मेरा वही एक साल में एक्स्ट्रा जो सिप करता हूं उससे 4 लाख 40 लाख बढ़ जाएगा। राइट? सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स मोस्टली वी शुड प्लान फॉर अस। ओके, एंड नाउ दिस आर फॉर 15% रिटर्न। अगर आप 18% कर रहे हो, तो आपका वर्थ भी ज्यादा क्रिएट होगा, एंड मे बी मिस होगा तो थोड़ा कम वर्थ क्रिएट होगा। एंड अगेन यार, वी आर नॉट लाइक, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू सिप, इट्स योर चॉइस। सो आपके फैमिली मैटर्स के हिसाब से, क्योंकि मैं कभी कभी सिप के बारे में बात करता हूँ जब मार्केट गिरा हुआ रहता है, तो द रीजन इज द सेम। आई हैव सीन मेनी पीपल हु स्टॉप देयर सिप ड्यूरिंग बैड फेजेस ऑफ मार्केट। मैंने देखा है कि कोविड आने के बाद लोगों ने विड्रॉ किया है, सिप बंद किए हैं। यूक्रेन वॉर के टाइम पे लोगों के सिप बंद देखे हैं मैंने।
मोदी चुन के आएंगे नहीं आएंगे, मार्केट क्रैश होगा तो 24 जून मोदी जो चुन के आए हैं उसके 1 महीने पहले मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है मार्केट से। तो जो लोग विड्रॉ कर रहे हैं ना, कसम से उनके पोर्टफोलियो ही नहीं बने, ठीक है, तो क्योंकि वो आदत गिर जाती है आपको। तो वाई दीज थिंग्स आर कंपलसरी, और वाई आई एम 100% इन्वेस्टेड, आई थिंक यू शुड बी 100% इन्वेस्टेड, बिकॉज यू शुड टेस्ट द साइकोलॉजी ऑफ योर ओन ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड। ओके, वी कांट टाइम द मार्केट, कोविड के पहले मैं विड्रॉ कर लूंगा या कोविड के बाद मैं फिर से पैसे डाल दूंगा, वी कांट टाइम द मार्केट। ओके, सो दिस वेर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एनी क्वेरीज? कुछ समझा नहीं या समथिंग, या कुछ डिस्कस करना है? हाँ भाई, ऑल गुड। ओके, यस, Hello. हाँ बोलो। Yeah, am I audible? यस यस Hello. यस So, अभिजीत प्लीज टेल। tell me, when we are doing total worth of the portfolio is bigger. So, how many stocks do you keep, or where do you restrict in terms of portfolio percentage investment in one stock? ओके, सो Obviously, हाँ हाँ, one- या obviously आपका there is आपका वॉइस ना थोड़ा ये हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा सा, माइक को नजदीक या फिर बहुत ज्यादा नजदीक हो गया, आई डोंट नो। Audible now? या मच मच बेटर, हाँ आप बताओ। I was just asking, where do you restrict your investment in one percentage? When the portfolio is bigger, how many stocks one should keep so that over diversification should not happen? And obviously, there will not be success wherever we invest. There will be failures. So how do you tackle if the stock goes down? ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, आप कितने स्टॉक ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो Okay. जैसे कोविड के पहले ना बहुत कम ऑप्शंस रहते थे, लाइक जैसे 15 स्टॉक, 15 सेक्टर को कवर करते थे, ठीक है। अभी आप सेक्टर देखोगे ना, सब सेक्टर भी क्रिएट हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे एग्जांपल एसी के लिए अपने पास पहले खाली 2-3 स्टॉक रहते थे, ब्लू स्टार, वोल्टास एंड आई गेस और कौन सा था तीसरा, अंबर में भी, अंबर कोविड के पहले लिस्ट हुई। अभी अभी उसके 10 ऑप्शंस आए हुए हैं, कोई कुछ पार्ट बना रहा है, कोई कुछ पार्ट बना रहा है, कोई असेंबल कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर ही नहीं था पहले, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सेमीकंडक्टर्स आ गए हैं, आपके पास ईएमएस के काफी स्टॉक्स आ गए हैं। तो अगर आप बोलोगे यार मुझे 15 स्टॉक लेना है 15 सेक्टर में, देन देयर इज चांस ऑफ यू कैन मिस द अदर अपॉर्चुनिटीज। Correct. सो अभी मे बी जस्ट एग्जांपल, जो मैंने एक पोर्टफोलियो अभी मेरे वाइफ का डिस्कस किया है, उसमें लगभग 40-45 स्टॉक है, जिसमें 90% ऑफ एलोकेशन खाली 25-30 स्टॉक्स में किया होगा। Okay. बाकी अभी कैसा है कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने मुझे एक स्टॉक मिला और मैं लमसम में एक ही स्टॉक 5% एलोकेट कर देता हूँ। When we are in small caps now, I think we need to go slowly, because we to discover the valuations it takes 6 months to 12 months to 18 months for the best buy. तो फिर धीरे धीरे भी जैसे कुछ जो पांच अभी जस्ट एग्जांपल 40 स्टॉक के पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक में से 20 स्टॉक मैच्योर हो गए हैं हमारे। Okay. बचे बचे कुछ जो स्टॉक्स है वो मे बी अक्यूमुलेशन मोड में होंगे। कुछ स्टॉक हमें ट्रायल के लिए भी लेने पड़ते हैं, भाई तू शेयर बनेगा या बिल्ली बनेगा, तो शेयर बन रहा होगा तो राइट। 18 months के बाद also when you have done with your investment, या अभी डायनामिक सिचुएशन है, कुछ भी Correct. एलिमेंट्स आ सकता है, Correct. कंपनी को कुछ चैलेंज आ सकता है, करेक्ट। then where do you exit? Till what time you will stick Yeah, to it? so all depends on fundamentals. Just example, एक हम से हिमाद्री एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अब हिमाद्री स्टॉक हमने जब कभी बाय किया था, अभी वो स्टॉक जस्ट एग्जांपल, आई जस्ट अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, इट वाज ओवर वैल्यूड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो इफ आई ओपन की मिनट में ये क्लोज कर दूं। ओके, अब ये हिमाद्री का 5 साल का ग्राफ है, ठीक है। अभी मैंने एक सीखा है कि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही होगी तो ना उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब खुद के खुशी के लिए क्या करो, एक 10-20% ना साइड में निकाल लो अपने। मान लो मेरी एक कंपनी 2-3-4 बैगर की हो गई है, ओके, तो ये केस में क्या हुआ था कि जस्ट एग्जांपल प्रीवियस हाई को ये कंपनी ने ब्रेकआउट किया था, तो एक रैली हुई थी उसके बाद, राइट। फंडामेंटल्स इस पे मेजरली 99% फंडामेंटल्स है, 1% में टेक्निकल अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10% एग्जिट कर दिया था स्टॉक में से, मेरा तभी शायद 4-5 बैगर हुआ होगा, राइट। बट अगेन आई नीड टू क्रॉस चेक, बेचने के टाइम पे ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है क्या कंपनी में, सो दैट स्टॉक कैन गेट जस्टिफिकेशन कि वो इतने प्राइस पे क्यों है। तो इमीडिएटली इसके बाद बिरला टायर के एक्विजिशन की न्यूज आई, तो अगेन आई कैलकुलेटेड व्हाट शुड बी द वैल्यूएशन आफ्टर 5 इयर्स, कि अगर ये बंदा 4 साल में टायर बेचना चालू कर देता है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, खुद का कार्बन ब्लैक है, टायर बनाएगा तो मार्जिन ज्यादा आएगा, तो कितना रेवेन्यू रहेगा, राइट। तो उस वजह से फिर मैंने पूरी क्वांटिटी नहीं बेची, तो स्टॉक ऊपर जाता नहीं, तो ईवी की न्यूज आ गई, तो राइट। तो हर टाइम पे, तो अभी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड था इस टाइम पे, मुझे लग भी रहा था अभी इस यहाँ पे भी मैंने कुछ 10-20% फिर से उड़ा दिए थे, बिकॉज आई डोंट नो द स्टॉक कैन फॉल, जैसे प्रीवियसली फॉल हुआ था। बट अगेन फंडामेंटल्स बता रहे थे कि ओवर वैल्यूड तो है बट कम फॉल होगा, राइट। Okay. तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो प्रोडक्ट्स हमें देखना भी पड़ता है, वो 2 साल बोलता है ना, 2 साल के बाद टायर आएंगे, ईवी आएगी, तो हमें वो भी ट्रैक करना पड़ेगा वो सही में आ रहे हैं क्या। अगर वो आ रहे हैं तो धीरे धीरे कैसा है, फ्यूचर ना हर साल ट्रैक करना पड़ेगा हमें, तो दैट्स हाउ वी कैन। तो इसमें मुझे दुख भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। अब जैसे कुछ केस है, फ्रूडन का मैंने एक भी स्टॉक नहीं बेचा था, अभी रिसेंटली मैंने 20% एग्जिट किया फ्रूडन में से, फ्रूडन फार्मा। वो भी रीजन ऐसा था कि मुझे पैसों की जरूरत थी दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि हमने 10 बैगर हो गया तो पूरा एग्जिट करना चाहिए, इफ इट हैव कैलिबर। जैसे एग्जांपल एबी कैपिटल,
I took decision to exit completely in one shot because equally I got the other lump sum opportunity. तो नए अपॉर्चुनिटी कौन से फॉर्म में आ रही है, या आके यानी बेच के आपको एफडी में डालना है या बेच के आपको उसको अच्छा कंपाउंडिंग करना है, उस पे आपने डिसाइड करना चाहिए कि ये पैसों का यानी मैं बेचने के बाद क्या करना चाहिए, सो दैट अगर यहाँ से मेरा कैगर मिस हो जाता है तो क्या ये कैगर मेरे दूसरे स्टॉक में कवर होगा, राइट। एग्जिट का सिंपल रूल है, मैनेजमेंट की बैड कमेंट्री, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लो है, प्रोडक्ट में कंपटीशन आ गई है, मैनेजमेंट कुछ कह रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार वही हो रहा है, तो दैट इज द एग्जिट कॉल फॉर अस। जब ऐसे लगे कि मैं एक्सपेक्टेशन थे 15% के ग्रोथ के, वो बंदा दे रहा है 7-8% का ग्रोथ, तो फिर मैं आई शुड एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक, राइट। तो अपने एक्सपेक्टेशन भी सेट चाहिए। तो अभी ब्लू चिप के लिए अलग एक्सपेक्टेशन रहता है, ब्लू चिप में हम सोचते हैं कि 10-12% आ गया तो भी बहुत हो गया, 1% डिविडेंड डील आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक टू स्टॉक, अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज। अब मैंने ऐसे भी पोर्टफोलियो देखे हैं कि जिनके 100% में से 90% वन स्टॉक मल्टीबैक्ड बाय 100 टाइम्स, तो एक ही स्टॉक का वेटेज 90% है एक बंदे के पोर्टफोलियो। एंड नाउ व्हाई वी शुड होल्ड सच स्टॉक्स, इट इज शोइंग द कैलिबर टू फर्दर ग्रोथ, फॉर फर्दर ग्रोथ, दैट्स व्हाई ही माइट बी कीपिंग दैट स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो। सो ऐसा यानी जैसे एग्जांपल राकेश झुनझुन वाला 60-70% खाली टाइटन बैठा है। इफ यू आर इन राइट स्टॉक एंड इट इज जस्ट एग्जांपल, बजाज फाइनेंस में कोई 15 सालों से है, तो आई डोंट थिंक ही विल सेल नाउ। जो निकलने हैं वो बंदे पहले ही निकल गए, बड़े बड़े फंड मैनेजर 100 का 200-300 हो गया तो निकल गए थे, उसके बाद एज अ ब्लू चिप शायद अभी लेते होंगे। बट जब मैं वही है कि मेरा स्टॉक अगर 25% 20% का ग्रोथ अभी भी दिखा रहा है, देन व्हाई शुड आई एग्जिट। थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा, थोड़ा जस्ट एग्जांपल हिमाद्री का देखो, अभी कंसोलिडेशन आया, एक फॉल आया, कंसोलिडेशन आया, देन जैसा मैंने कहा कि जस्टिफाई का क्या किया उन्होंने, नंबर 1 नए प्रोडक्ट्स आए हैं एंड प्लस मार्जिन एक्सपेंशन, देखो बहुत जबरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, तो दैट इज दैट देखो 800 का खाली प्रॉफिट दिया है ये स्टॉक, तो इट्स लाइक अचीवमेंट फॉर दिस कंपनी। अगेन लाइक अभी इन्होंने कुछ बेचा है यहाँ पे इसलिए 800 दिख रहा है, कुछ एग्जिट किया, प्लॉट वॉट बेचे होंगे इन्होंने शायद, इसलिए ये प्रॉफिट बढ़ा, बट स्टिल देयर इज अ गुड मार्जिन एक्सपेंशन एक्चुअली, दैट इज आल्सो ट्रिगर फॉर स्टॉक टू मल्टीप्लाई। ल्यूमेक्स ऑटो एक मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं 2018-19 में ये स्टॉक को लिया होगा, मैंने एक भी स्टॉक नहीं बेचा इसका आज तक, क्योंकि मुझे ग्रोथ दिख रही है हर साल। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा स्लैक पीरियड आएगा, अभी ये टाइम पे मुझे लगा कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, इसका मतलब You're showing something, na? Screen is not visible. इज दैट ओके? It's visible. I think that there's a problem with me then. Is it visible? माय स्क्रीन इज विजिबल, नीलेश और एनीवन एल्स? ये समय ठीक है, seems you are problem. presenting. Yeah. ठीक है, sorry. ओके ओके, नहीं ठीक है, नहीं यानी मेरा एक ही बोलना है कि अभी जस्ट एग्जांपल वन ऑफ द आइडिया आई एम होल्डिंग इज लूमेक्स ऑटो, नाउ आई कैन सी ग्रोथ एवरी ईयर। अभी एक टाइम ऐसा था लास्ट साल के, ऐसा लग रहा था स्टॉक ओवरवैल्यूड हो जाए, बट ओवरवैल्यूड हो गया एंड ग्रोथ भी है, तो हो सकता है वो स्टॉक 20% करेक्ट हो जाए, जो ये केस में हुआ भी था एक्चुअली, बट अगेन जब रिजल्ट आएगा इट विल मेक न्यू हाई। ओके, सो yeah, so criteria can be that we are not happy with the stock actually, कि our expectation are not met, then maybe you can exit, और there is also possibility कि कभी कभी क्या होता है कि एक थीम चलती है, नेवी की थीम चल रही है, डिफेंस की थीम चल रही है, पीएसयूज की थीम चली है, अगर आपने वो थीम में कोई स्टॉक को पकड़ लिया है तो देन मे बी यू कैन प्लान योर एग्जिट अकॉर्डिंगली, क्योंकि कोई भी थीम चलती है ना वो 4-5 साल के ऊपर नहीं चलती। ओके, एनी क्वेरीज, फर्दर क्वेरीज? Amar, what about gold and silver? So should it be part of your portfolio? I am more or less invested in gold not, but silver not, but gold stocks like finance companies बोलो या फिर retail businesses बोलो, so I'll be more interested to buy such stock because that will compound better than gold. Okay, understood. Yeah, but again like उसमें भी बहुत competition है, तो हर बंदा आजकल गोल्ड फाइनेंस की कंपनी खोल रहा है, तो we need to be little bit cautious. जैसे एग्जांपल अभी मुथ्थू फाइनेंस will definitely grow better than gold, I think so. एक बार whatever डिस्काउंट आने दो, उसके बाद आप कैलकुलेट करके देखोगे, बट अगेन वन मोर थिंग आई एम नॉट लाइकिंग इन मुथ्थू फाइनेंस बिकॉज इट इज लाइक अ होल्डिंग कंपनी, तो आई एम लिटिल बिट वरीड कि जो नए आईपीओ आ रहे हैं दैट शुड बी नॉट पार्ट ऑफ द देयर होल्डिंग, दे शुड प्रॉपर्ली डीमर्ज दैट कंपनी, इट शुड नॉट बी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, नहीं तो बजाज फिनसर्व जैसा हाल हो जाएगा मुथ्थू फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस देखो ठूस के वैल्यूएशन है, बट व्हाई इट्स नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट बिकॉज इट्स 50% इट इज अ होल्डिंग कंपनी नाउ. So yeah, again like these are not the ideas or tip or something, but it's just a thought कि गोल्ड से बेटर बाकी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है एक्चुअली मार्केट में. Right. Thank you.